بیان اس کا 22واں باب اس کی 11ویں 12ویں 13ویں اور 14ویں آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ متی رسول کا انجیلی بیان، متی کی معرفت لکھی ہوئی یسوع مسیح کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم اس کو تلاوت کریں گے۔ جی سبھی نے نکال لیا؟ اگر نکال لیا تو کہیں آمین۔ 11ویں آیت کو میں پڑھوں گا تو یہاں پر لکھا ہے، اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس بار بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھے۔ آمین۔ 14ویں آیت کو سبھی ایک بار پھر مل کر پڑھیں۔ کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سنایا جناب صاحب کے لیے بھائی سے برکت ہو۔ آمین۔ آئیے بڑی سنجیدگی سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے گا۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور پچھلی دفعہ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے کلام کیا سیکھا تھا؟ پہلے بھائیوں میں سے کو بتائے کہ پچھلے اتوار کا سرمن کیا تھا، مکسر رنگ جو ہے وہ پہلے بھائیوں میں سے ہم کوئی بھی بھائی بتا سکتا ہے کہ پچھلے اتوار کا میسج کون سا تھا؟ بھائیوں میں سے کو بتائے۔ شاباش، شادی کی ضیافت، اور اس میں کیا ہم نے سیکھا تھا؟ ان کو بلایا گیا تو وہ نہیں تھے آئے، اور جو لنگڑے شاباش، یعنی کہ جن کو بلایا گیا، اپنوں کو بلایا گیا، اپنوں کو دعوت نامہ بھیجا گیا اور وہ نہ آئے، کیوں نہ آئے؟ یہ بہنیں بتائیں گی۔ ہاں جی شاباش، بہنیں بتائیں گی وہ کیوں نہ آئے؟ عذر۔ شاباش، کتنے لوگوں نے کون سا عذر کیا؟ 3 لوگوں نے عذر کیا۔ پہلے نے کیا عذر کیا؟ بہنیں بتائیں گی۔ اونچے بولے نا۔ میں نے کھیت خریدا ہے۔ بھائی بتائیں گے دوسرے نے عذر کیا بلا کیا؟ میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں۔ جو گیلری پر بیٹھے ہیں تیسرا عذر وہ بتائیں گے کہ تیسرا عذر کیا تھا؟ آپ گیلری پر تو نہیں بیٹھے، اوپر گیلری میں سے آواز آئی ہے۔ تیسرا عذر کیا تھا؟ شاباش، یعنی کہ پہلے نے کہا کہ میں نے کھیت خریدا ہے، ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں۔ دوسرے نے کیا عذر یا بہانہ بنایا کہ میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں، ضرور ہے کہ میں انہیں جا کر آزماؤں۔ اور تیسرے نے کہا میں نے کیا کیا ہے۔ یعنی کہ یہ تینوں عذر، یہ بہانے 3 لوگوں کی تصویر کو بیان کرتے ہیں، یعنی کہ 3 بہانے بنانے والے، عذر بنانے والے لوگوں کی تصویر کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور کھیت کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ پراپرٹی کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں، اور یہ بڑا ہی منافع خور سودا ہے۔ یہ پراپرٹی کا جو ہے یہ بڑا ہی منافع خور کام ہے، یہ بہت ہی پرافٹ کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ضیافت میں آئے، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ اور دوسرا جو ہے وہ 5 جوڑی بیل خریدنے والا یا ان کو آزمانے والا، وہ ہمارے بزنس کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری ملازمت کو، ہماری ڈیوٹی کو جو ہے وہ پیش کرتا ہوا یا ظاہر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اور تیسرا جس نے بہانہ یا عذر کیا وہ کیا تھا؟ میں نے بیاہ کیا ہے۔ یہ ہمارے ازدواجی رشتے کو ظاہر کرتا ہے، یہ سماجی رشتوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یعنی یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کی ضیافت سے، خدا کی رفاقت سے یا خدا کی بادشاہی سے دور رکھتی ہیں۔ یعنی کہ ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد جس سے ہم بہت زیادہ منافع حاصل کرتے ہیں، پھر دوسرے جو ہے وہ ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہماری ڈیوٹی، ہماری نوکری، ہماری ملازمت، یہ بھی ہمیں خدا سے دور رکھتی ہے۔ اگر بلا وجہ ہم خدا کی حضوری سے بھاگ جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، عذر یا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے
ازدواجی بندھن یعنی کہ ازدواجی زندگی میں بندھ جانا، باندھ جانا، اور پھر اس کے بعد سماجی رشتوں کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ خدا سے بڑھ کر ہم ان کے ساتھ ریلیشن رکھیں، تعلقات رکھیں. جو خدا کا وقت ہے، جو خدا کا ٹائم ہے، جو خدا کا دن ہے، اگر ہم وہ دنیا داری کو دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی حضوری سے بالکل بھاگنا ہے، خدا کی حضوری سے انکار کرنا ہے، اور خدا کی بادشاہی سے انکار کرنا، نفرت کرنا ہے. یہ اس کے مترادف آتا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ جیسا کہ آپ نے سیکھا کہ جب اپنوں کو انویٹیشن کارڈ بھیجا گیا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، دعوت نامے کو قبول نہ کیا، تو پھر بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بادشاہ غضبناک ہوا. کب؟ جب اس کے نوکروں نے آ کر بتایا کہ تیرے اپنوں نے تیری دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، تیری دعوت کو رد کر دیا ہے. اور اس کو بڑا غصہ آیا. وہ کہہ رہے شدید میں بھڑکا، اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا، یعنی کہ اس نے ایسا لکھا ہے کہ اس نے اپنے لشکر کو بھیجا، اور لشکر کو بھیج کر کیا کہا کہ جا کر ان خونیوں کا شہر جلا دو. اور جب جلا دیا گیا تو پھر آگے کا لکھا خدا نے پھر دوسرا ایک دعوت نامہ، ایک انویٹیشن کارڈ جو ہے اپنے ملازموں کو دیا، اور کہا کیا بچاؤ گلیوں کوچوں میں بازاروں میں، اور جیسے کہ پیسے بھی تمہیں ملے، چاہے اندھے ہوں، چاہے لنگڑے ہوں، چاہے وہ لونچے ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے مزدور اور کمزور ہوں، ان کو لے کر آؤ تاکہ میرا گھر مہمانوں سے بھر جائے. اور جو میرے موٹے موٹے جانور، میرے بیل ذبح چکے ہیں، ان کا ذبح کیا جانا، ان کو پکانا، یعنی کہ کھانا تیار کیا گیا ضائع نہ ہو. چلو اپنے نہیں، کوئی نہ کوئی تو آئے اور اس کھانے کو کھائے تاکہ پکا ہوا کھانا ضائع نہ ہو. اور پھر جب وہ لوگ آئے جو باہر کے لوگ آئے، یعنی کہ جیسے بھی ان کو ملے، ملازموں کو ملے، انہوں نے ان کو دعوت دی، انویٹیشن کارڈ دیا کہ آؤ بادشاہ کے گھر میں تمہاری دعوت ہے، بادشاہ کے گھر میں تمہیں ایک شام کا کھانا ملنے والا ہے، اور لذیذہ کھانا ہے، بہت ہی زبردست ٹیسٹی کھانا ہے، اور ایسا کھانا آپ نے آج تک اپنے گھر میں بھی نہیں کھایا ہوگا. اور سبھی نے خوشی خوشی سے اس دعوت نامے کو قبول کیا، اس ضیافت کو قبول کیا، اور سبھی خوشی خوشی، جو اندھے تھے وہ بھی ٹٹول کر آئے، اور دوسروں کا سہارا لے کر اس ضیافت میں آ گئے، وہ بھی آ پہنچے. اور جو لنگڑے تھے وہ بھی اس طرح سے آ رہے تھے، اور جو گونگے تھے وہ بھی اس طرح سے کسی سے پوچھ پاچھ کر آ رہے تھے، اور جو بالکل کمزور تھے وہ بھی دوسروں کی سپورٹ یا سہارا لے کر آ گئے. یعنی کہ جو کوئی کسی بھی حالت میں تھا، کسی بھی کنڈیشن میں تھا، چاہے کوئی اندھا تھا، چاہے کوئی لوچا تھا، چاہے کوئی لنگڑا تھا، چاہے کوئی بہرا تھا، چاہے کوئی بھوکا تھا، ان سب نے جو ہے وہ بادشاہ کے انویٹیشن کو قبول کیا، اس کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر وہ بادشاہ کے گھر میں اس کی ضیافت اٹھانے کے لیے آ گئے. جب آئے تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی، اور پھر نوکروں نے کہا کہ بالکل مہمان آ چکے ہیں، لیکن جگہ اب بھی خالی ہے، جگہ بھی خالی ہے. اور پھر بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کھیتوں کی طرف چلے جاؤ، آپ پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، اور ان کو بھی مجبور کرو تاکہ وہ بھی اپنا کام کاج چھوڑ کر، کھیتی باڑی کو چھوڑ کر میرے گھر میں آئے، میری بادشاہت میں آئے، میری ضیافت میں شرکت کریں، اور میرے کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور اس کھانے کو کھائیں. اور انہوں نے بھی اس بادشاہ کی دعوت کو قبول کیا، سبھی نے بادشاہ کی دعوت کو قبول کیا. اور پھر نوکروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تیرا گھر مہمانوں سے بھر گیا ہے، بادشاہ تیرا گھر مہمانوں سے بھر گیا ہے. پھر بادشاہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگا ہوگا، اور بادشاہ اب خوشی اور شادمانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے. جب مہمانوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو پھر سبھی مہمانوں کو دیکھتا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا شادمان ہوتا ہے، وہ مسرور ہوتا ہے، وہ بڑا ہی اس بات کے لیے راضی ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو میرا گھر مہمانوں سے بھر گیا. لیکن پھر بھی اس کے اپنوں سے نظر نہیں آتے. لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی تو آیا، اپنوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، اپنوں نے اس ضیافت کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا، اوپر سے میرے ملازموں کو، میرے نوکروں کو بھی مارا، قتل کر دیا. اور پھر اس نے کہا کہ چلو کوئی نہ کوئی
छोटे जानवर और बैल जो ज़बह किए हुए हैं वो ज़ाया ना जाए, वो जरूर लोग खाएं। और ऐसा ही हुआ और वो मेहमानों को देखने के लिए, जो 11वीं आयत से 14वीं आयत तक हमने पढ़ा है, अब बादशाह मेहमानों को देखने के लिए, बादशाह मेहमानों को सुनिएगा, बादशाह मेहमानों को देखने के लिए आया और सभी बड़े खूबसूरत तरीके से और बड़े सेटअप और गेटअप में आए हुए थे। लेकिन जब वो एक एक को देख रहा था, एक एक पर नजर दौड़ा रहा था, एक एक को चेक कर रहा था, तो एक ऐसा बंदा उसकी नजर से गुजरा जिसने शादी का लिबास नहीं पहना था, जिसने शादी का लिबास हरगिज़ नहीं पहना था। इसका ये मतलब नहीं कि वो बरहना था, इसका ये मतलब नहीं कि उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, उसने कपड़े जरूर पहने थे, लेकिन याद रखिएगा शादी वाले कपड़े इससे क्या मुराद है, शादी वाले कपड़ों से क्या मुराद है। एक रिवायत है जो उस वक्त ये रिवाज हुआ करता था, सुनिएगा, ये रिवायत है कि उस वक्त ये रिवाज हुआ करता था कि जो कोई शादी में आता था वो एक स्पेशलिस्ट जो है वो शादी की पोशाक पहने हुआ करता था, और जिसके पास शादी की पोशाक नहीं होती थी उसको मुहैया की जाती थी। हो सकता है घर वाले देते हो कि ये ले, ये मेरी तरफ से ले और तू पहन, ताकि तू भी इस शादी के मेहमानों में शामिल हो जाए, तू भी शादी के मेहमानों में मेहमान लगे, ना कि कोई अलग थलक लगे, ना को तू मुख्तलिफ लगे, ना तो डिफरेंस लगे, बल्कि तू शादी वाला बंदा लगे कि वाकई ये शादी में शिरकत करने के लिए मेहमान आया है। और बाकी सभी ने शादी वाली पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन एक बंदा, कितने बंदे, एक आदमी ऐसा बादशाह की नजर से हो गुजरा जिसने शादी की पोशाक नहीं पहनी थी, जिसने शादी की जो पोशाक या लिबास या कपड़े नहीं पहने थे, वो बिल्कुल अपने कपड़ों में आया था, वो बिल्कुल अपने कपड़ों में आया। हालांकि हो सकता है कि मेरे पहले बताया कि रिवायत है उस वक्त रिवाज हुआ करता था कि जिसके पास शादी की पोशाक या शादी के कपड़े नहीं हुआ करते थे, ड्रेस नहीं हुआ करता था, उसे दिया जाता था, उसे मुहैया किया जाता था, उसको मिला था, उसको शादी का लिबास मिला था कि ले तू भी पा ले, लोगों ने दिया होगा कि ये तू पा, और उसने कहा नहीं मेरा तो टाई ठीक है, मैं ये कल सही कराए कपड़े, बिल्कुल ठीक है, मैं तो बिल्कुल मेरा ड्रेस मेरे कपड़े मेरी पोशाक बिल्कुल ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। उसने शादी वाले लिबास को ठुकरा दिया, उसने शादी वाली पोशाक को जानबूझकर ठुकरा दिया। उसने कहा कि इन सब से मेरे कपड़े दुरुस्त हैं, शादी वाले कपड़ों से, शादी वाले लिबास से, शादी वाले ड्रेस से मेरा ड्रेस बिल्कुल जबरदस्त है, मैं वेल ड्रेस हूँ, मैं क्या हूँ, मैं वेल ड्रेस हूँ, मैं बड़ा जबरदस्त लग रहा हूँ। लेकिन अपने आप में तो खुद को वो ठीक समझ रहा था, वो दुरुस्त समझ रहा था, अपने कपड़ों को भी वो वेल ड्रेस समझ रहा था। लेकिन जब बादशाह आया तो उसने कहा मियां तूने शादी वाला लिबास क्यों नहीं पहना, तूने शादी वाली पोशाक क्यों नहीं पहनी, बता, तूने इस पोशाक को क्यों ठुकरा दिया। बाकियों ने तो मेरी दावत को ठुकरा दिया और मैंने उनके शहर को क्या कर दिया, जलाकर राख कर दिया, लेकिन तूने मेरी दी हुई पोशाक को ठुकरा दिया, तूने मेरी दी हुई पोशाक को, मियां तूने क्यों ऐसा किया है, मियां तूने ऐसा क्यों किया है। और मियां जो लफ्ज है ये वैसे तो आज के दौर में बड़े इज्जत मुआब लोगों को ये नाम दिया है मियां, लेकिन उस वक्त इस आयत के मुताबिक जब इसकी मैं सर्च कर रहा था तो मियां लफ्ज है कि तंज का था, एक असनावे मियां ऐसे ही है ना, अब मियां सनावे ठीक है मियां ऐसे है ना, लेकिन उस वक्त ये जो मैं सर्च कर रहा था इस मियां लफ्ज का जो यहाँ पर बादशाह ने उसके लिए इस्तेमाल किया ये बड़ा तंजी लफ्ज था। ये तंज के साथ, मजाक के साथ बादशाह ने कहा कि मियां तू शादी के लिबास के बगैर क्यों आ गया, तू क्यों सारी दुनिया से अलग थलग नजर आ रहा है, तू क्यों दूसरों से अलग नजर आ रहा है, तू क्यों दूसरों से सारी बात और मेल और बराबरी से तू क्यों डिफरेंट नजर आ रहा है। देख तुझे भी चाहिए था कि शादी की पोशाक पहनता ताकि तू भी यहाँ रहता, ताकि तू भी यहाँ रहता। अगर देखिए अगर हमारी शादी हो, हमारी शादी से मुराद क्या है, मेरी तो हो चुकी है, आप में से अगर हमारे घर में मेरे बच्चों की किसी और की आप में से किसी की शादी होती है, अगर बरादरी में से, अगर कोई रिश्तेदारों में से, मोहल्लेदारों में से, आस पड़ोस के लोगों में से अगर कोई
बताइए कैसा लगेगा? दसो तो सही। तो फिर दस क्यों नहीं पर? अगर फर्ज करो कि मैं आपकी किसी शादी पर अच्छे कपड़े ना पहन कर जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? अक्सर होता है कि शादियों में जो बड़े होते हैं ना, वालिदैन या बड़े भाई या बड़ी बहनें, वो कामों में बड़ा मसरूफ होते हैं, बड़ा आओ भगत के लिए बड़ा मसरूफ होते हैं, घर के काम काज के लिए, मेहमानों को वेलकम करने के लिए बड़ा मसरूफ होते हैं। कभी वो लागे, कभी यह लागे, कभी वो सौदा हो गया, कभी यह सौदा मिलकर खत्म हो गया और उनका कपड़े बदलने का टाइम ही नहीं लगता। तो मैंने देखा है कि उन्होंने पुत्र या भरा अब की कर दो, कपड़े बदलो, और मैं कपड़े बदला के काम करा। हाँ जी, ये इसका मतलब है कि उनके बच्चों को भी अपने बालक के गंदे, मैले या फटे पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते। छोटे भाइयों को पुराने, फटे पुराने और मैले कुचाले कपड़े अच्छे नहीं लगते। जब हमको एक दूसरों के ऐसे खुशी के मौका पर फटे पुराने या मैले पुराने कुचाले कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो क्या उस बादशाह को अच्छे लगते होंगे? मैंने पहले बताया है कि हो सकता है कि उसके कपड़े दूसरों से अच्छे को समझता हो कि मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, मैं वेल ड्रेस हूँ, दूसरों के कपड़ों से बड़े अच्छे, बड़े नए, डिजाइन अलग है, कपड़ा बड़ा जबरदस्त है, सब कुछ उसने चेक किया होगा। एक ना कपड़ा चेक करने वाला शीशा होता है इस तरह से, उसमें से जब हम नजदीक से देखते हैं तो हमें कपड़ों के गरारियों का पता चलता है कि इसके अंदर गरारियां कितनी है, क्योंकि मैं पावर लूम का काम करता रहा हूँ और वो इस तरह से मुंशी जो है इस तरह से देखा करते थे, हाँ भाई ये कपड़ा जो गरारी मैंने लगाई थी या उसी के मुताबिक कपड़ा बना है, अगर नहीं तो फिर वो गरारी को बदलता था और वो कपड़ा सेम जैसा वो चाहता था वैसा बन जाता था। और वो कहता था कि मेरा कपड़ा जो दूसरे कपड़ों से क्या है, अलग है, खूबसूरत है, अलग तलक है। लेकिन बादशाह ने जब देखा तो उसने कहा मियाँ इधर आ जा। मियाँ क्यों इधर आ जा? क्योंकि तूने शादी की पोशाक, शादी का लिबास, शादी का ड्रेस क्यों नहीं पहना? तूने क्यों मेरे दिए हुए शादी के लिबास को रद्द किया? तूने क्यों उसे झुठला दिया? देख अब तुझे सजा मिलेगी, अब तुझे सजा मिलेगी, अब तेरी अदालत होगी। और उसकी अदालत क्या थी? लिखा कि इसके हाथ पांव बांध कर, इसके मौका नहीं, उस वक्त मौका सुनिएगा, उस वक्त मौका नहीं। बादशाह ने क्या अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया, क्या ऑर्डर दिया, क्या दिया कि इसके हाथ पांव बांध कर, हाथ पांव बांधने से क्या है, क्या दियो? जब कोई हाथ पांव किसके बांधे जाते हैं? बेड़ियां और जंजीरें किनको पहनाई जाती है? जो बड़ा खतरनाक मुजरम हो उसको बेड़ियां और उसको हथकड़ियां पहनाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। और ऐसे खतरनाक मुजरम को जो इश्तिहारी हो, जो बहुत बड़ा कातिल हो, जो बड़ा खतरनाक मुजरम हो, जिसको उसके घर वाले भी उससे डरते हो, माले वाले भी उससे डरते हो, रिश्तेदार भी उससे डरते हो, सारी दुनिया उससे डरती हो, जब वो पुलिस के कब्जे में आ जाता है, पुलिस की हिरासत में आ जाता है, पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं? उसके हाथ पांव यानी कि बेड़ियां पहना देते हैं और फिर उसको सख्त से सख्त सजा देते हैं। और इसके बारे में क्या लिखा है? इसके हाथ पांव बांध दो, इसके हाथ पांव। इसका क्या मतलब है? यानी कि इसका मतलब कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया था, वो आम मुजरम नहीं था, वो बहुत बड़ा मुजरम था, इसलिए उसकी सख्त से सख्त सजा ये थी कि उसके हाथ पांव बांध दिए जाए, उसके हाथ पांव बांध दिए जाए। यानी कि उसके हाथों में क्या थी? हथकड़ियां और जंजीरें और बेड़ियां, उसे जकड़ कर, बेड़ियों जंजीरों से, हथकड़ियों से जकड़ कर उसका इलाज क्या हुआ? उसका इलाज क्या हुआ? इसे बाहर अंधेरे में डाल दो, बाहर अंधेरे में डाल दो। क्या उसकी बहुत बड़ी सजा थी? तो सजा क्या थी? उसका गुनाह क्या था? उसने किया क्या था? बताइएगा। समझ नहीं आ रही? हाँ जी, क्या ये हमारे ज़हनों में कोई इतनी बड़ी बात नहीं? चलो कपड़े ही पाए ना, कपड़े ही पाने सर ना, अब तरह से कहने आज कपड़े पाने ना, बड़े थे तो कपड़े पाने ना, और भाई किसी फंक्शन में कपड़े पाने ना, साढ़ा वो नहीं सोचने कपड़े पाए ना, वो मैं कोई मेरे को चढ़ देना पाए, मेरे को बड़े प्राण देना पाए। आजकल ये मुंडे पैंटा पाने जान के तो टकलवा लेंगे, इतों ना पहुंच देते। और फिर उसने कहा कि ये आज के नौजवानों से तो मेरे कपड़े ठीक है भाई, फटे तो नहीं ना, कंचका तो लगे, ठोकर तो लगे हैं, ठीक है ना, मेरा गैटा भी ठीक है, मैं कोई बड़े बड़े बाल रखे, कोई पोनी नहीं पाई, ना इथे ना मैं जुड़ियां की दिया ना मैं अच्छे कड़ा पाया, और मेरा गैटअप सेटअप बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर भी तू मुझे क्यों निकाल रहा है? लेकिन याद रखिएगा ये उसकी अपनी मर्जी थी, ये उसकी अपनी मर्जी थी, बादशाह के मुताबिक मर्जी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी।
और हर चीज नहीं थी, इसलिए उसकी सजा की थी। क्या थी? बादशाह ने क्या कहा? ऑर्डर क्या दिया? शाबाश बेटी, शाबाश। क्या कहा? इसके हाथ पाओ सख्त से सख्त सजा, और इसे काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी से मतलब क्या है? इसे बाहर अंधेरे में डाल दो। और वहां क्या है? सुनिएगा, वहां क्या है? एक उसके हाथों में हथकड़ियां और पांव में भेड़ियां, और फिर उसे डाला कौन जा रहा है? कहां जा रहा है? बाहर अंधेरे में डाल दो, बाहर अंधेरे में डाल दो। और वहां क्या होता है? वहां रोना और दांत पीसना। रोना और क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? क्यों? आज का हमारा मौजूद यही है कि शादी के लिबास के बगैर, शादी के लिबास के बगैर। अब मैं आपसे से सवाल करता हूँ, क्यों उसके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में भेड़ियां, और फिर उसे बांध कर जो है वो काल कोठरी में बाहर अंधेरे में डाला गया, जहाँ रोना और दांत पीसना है? क्यों? उसका कसूर क्या था? बताइएगा, कसूर क्या था? कपड़ों का कसूर था। कौन सा कसूर था? हाँ जी, लिबास, पोशाक, ड्रेस। तो हम चर्च जैसे चाहते हैं वैसे आ जाते हैं, ऐसे ही। चलो जेड़े कपड़े पिछले हफ्ते से पाए ने, कल के पाए ने, फिर गिरजे जाने ना, ऐसे ही है ना, गिरजे जाने। कई बार होता है कि गिरजों आके तो किसी बांटे जाना होता है, फिर कपड़े सी घर रखते उन्हें बांटे जाने कपड़े गिरजे ठीक ने, ऐसे ही है ना। वो गिरजे पुराने कपड़े ठीक ने, और भाई आके तो मैं शहर जाना, मैं पिंड जाना, मैं पुराने रिश्तेदार को जाना, आके पाओगे, आके पाओगे गिरजे आए चल रहे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए जो फितरी तौर पे दुरुस्त होता है ना, वो रूहानी तौर पे दुरुस्त होता है। जब हम रिश्तेदारों में किसी फंक्शन में हम अच्छे से अच्छा लिबास पहना कर या पहन कर जा सकते हैं, तो खुदा के घर में जैसे चाहे आ जाए, पाटे दुपट्टे, पाटियां पेंटा, वाल उखड़े चुखड़े वगैरह पता ही नहीं है, जिन्हें दिल करता सुते पड़ के आइए खा करके गिरजे जाना है। उन्होंने भी सोचा शादी हुई है ना, लिबास अपनी पसंद का, और ना भी उन्होंने पसंद है पावे तो कह रहे, लेकिन याद रखिए लिबास की बड़ी बात है। ये हमारी पर्सनैलिटी को जाहिर करता है। सुनिएगा, हमारी पर्सनैलिटी को। अगर मैं कैंची जुती पा के, लैंगली जुती पा के, पैड़ा या पजामा पैड़ या फिर रंग मैच करके शर्ट पा के पजामा पार्टी प्राणी और बाल इधर उधर कि किसी ऐसे यदि जब फंक्शन के पजामा को मैं जाकर कहूँ अगर मैं पार्टी में चाल निकल पार्टी निकल ड्रेस की जो है, कपड़े की जो है, वो बड़ी पर्सनैलिटी होती है। याद रखिए, अपना गेटअप और सेटअप जो है वो फितरी तौर पे भी दुरुस्त रखें, और रूहानी तौर पे भी उससे भी ज्यादा, उससे भी। वो बंदा क्यों निकाला गया, ये बताइएगा, बंदा क्यों निकाला गया? वो कहता हूँ नाशी की तरह, मुझे क्यों निकाला? मुझे पता होता है बंदे का मुझे क्यों निकाला जा रहा है, और उसने कहा होगा कि मुझे क्यों धक्के दे रहे हो, मुझे क्यों निकाल रहे हो, मुझे क्यों अंधेरे में डाल रहे हो, मुझे क्यों जो है अब वो मेरे हाथों में हथकड़ियां और मेरे पाँव में जंजीरें या भेड़ियां डाल रहे हो, क्यों? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों निकाल रहे हो? लेकिन बादशाह ने कहा चलो इसे वहां फेंक दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, जहाँ रोना और दांतों का। उसका कसूर क्या था? ये मैं आपको ये बार बार याद दिलाऊंगा, उसका कसूर क्या था? सभी बोले ना, पीछे बैठा भाई लगता समझ नहीं लगती कहीं। उसका कसूर क्या था? पहले भाई बताएंगे, पिछली साइड वाले। उसका कसूर क्या था भाई का? उस आदमी का कसूर क्या था? हाँ जी, उसका कसूर क्या था? क्यों उसके पाँव में, हाथों में भेड़ियां और पाँव में जंजीरें या उसे जकड़ा किया? क्यों? कसूर क्या था? हाँ जी, शादी वाली पोशाक के बगैर। और कितना बड़ा खतरनाक बंदा था वो, कितना बड़ा उसने खुदा उस बादशाह की हजूरी में ये जुर्म किया और मुजरम ठहरा। और फिर मुजरम का जो हक था, वो मुजरम की जो जजमेंट की जो अदालत थी, वो कैसे हुई? इसे बांध कर, इसे जकड़ कर कहाँ फेंक दो? कहाँ? बाहर अंधेरे में। और वहाँ था क्या? वहाँ क्या था? अंधेरा, गहरी तारीकी, जिसे कहते हैं काल कोठरी। साडा दुश्मन को होगा तो फिर तो तेरे पर्चा कराइए, तो कहते हैं इन्हों पिछले अंदर ढकना नहीं, इन्हों काल कोठरी से ढकना नहीं, जितों ये परते एक दिशे भी ना। और उसे कहाँ डाला गया? काल कोठरी में। कहाँ डाला गया? काल कोठरी में, यानी कि अंधेरे में, तारीकी में। और वहाँ क्या था? रोना और
खुदा किसी को ना रुलाए। लेकिन यहाँ पर जब मैं इस रिसर्च कर रहा था, इसका तर्जुमा देख रहा तो रोना जो है वो दोज़ख के रोने को ज़ाहिर करता है। साढ़े बड़े भैन भरावां दी आदत ये गल खुदा किसी को ना रुलाए, खुदा किसी पर भी ऐसा वक्त ना लाए। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो में तसल्ली इत्मीनान हौसला देता है। बात पर गालो बात से करने पर रो पे नहीं, लेकिन वहाँ पर ये रोना जो है ये जहन्नम की तस्वीर को, दोज़ख की तस्वीर को जो है वो ज़ाहिर करता है। रोना, बिला वजह रोते जाना, बिला वजह रोते जाना, रोए जाना, बात पर रोना, बात करने से पहले रो पड़ना, ये जहन्नम की तस्वीर को पेश करता है या ज़ाहिर करता है। याद रखिएगा, अपने आप को ज़ब्त किया करें खुदा के कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से। मैंने पहले कहा था खुदा ऐसा वक्त किसी पर ना लाए। लेकिन याद रखिए, रोना इस आयत के मुताबिक रोना किसको ज़ाहिर करता है? जहन्नम की आग को, जहन्नम की, क्योंकि वहाँ पर हर वक्त क्या होगा? रोना। वहाँ हर वक्त क्या होगा? जहन्नम में, दोज़ख में, हल में हर वक्त क्या होगा? हर वक्त क्या होगा? रोना, हर वक्त रोना और दांत पीसना। और दांत पीसने से मुराद है बगावत, अदावत। जब हम किसी से अदावत रखते हैं, किसी से बगावत रखते हैं, किसी से दुश्मनी रखते हैं, तो जब हम उसको देखते हैं या वो उसका कोई नाम लेता है तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है, गुस्सा। दांत पीसने से मुराद क्या है? जिन्होंने सिर्फ पंजाबी च की कहने वाला उन्हें तो बढ़िया चीचियां होती हैं, बेगायदा ना ही ना लो, मैंने बड़ा तो गुस्सा चढ़ता है। ऐसे इसी तरह ना, यानी कि दांत पीसना और दोज़ख में रोना और दांत पीसना है। हर वक्त बंदा गुस्से से, हर वक्त बंदा नफरत से भरा हुआ होगा और हर वक्त क्या करता होगा? दांत पीसता होगा, अपने आप पर दांत पीसता होगा, अपने आप पर दांत पीसता होगा। और वो बादशाह ने क्या कर दिया? इसे कहाँ पर फेंक दो, कहाँ पर डाल दो, कहाँ पर? पहले वो कहाँ था? सुनिएगा, पहले वो शादी हाल में था, पहले वो बैंक्वेट हॉल में था, खाना खाने की दावत में उसे शिरकत के लिए बुलाया गया था। शिरकत के लिए वो पहले वो खुशहाल था, पहले वो शादी की ज़ियाफ़त में था, पहले वो एक बादशाह के घर में था। लेकिन बाद में उसे फौरन उसके लिबास की वजह से, उसकी पोशाक की वजह से उसी वक्त हुक्म हुआ कि इसे बांधा जाए, इसे चकरा जाए और इसे कहाँ फेंका जाए, कहाँ डाल दिया जाए? बाहर अंधेरे में, बाहर अंधेरे में डाल दिया जाए। वहाँ रोना और दांत पीसना। अब देखना ये है कि ये बादशाह कौन है जिसके बेटे की शादी है? ये बादशाह कौन है? बादशाह कौन है? शाबाश, सभी बोले बादशाह कौन है? खुदा। यीशु नहीं, बादशाह कौन है? खुदा। बादशाह कौन है? और उसका बेटा कौन है? अब लाइन पर आए, उसका बेटा कौन है? यीशु। और एक शादी से मुराद क्या है? शादी ये है अंजील, यानी ये है खुशखबरी। हम इसे जो है वो और भी इसके मीनिंग जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन हम सिंपली तौर पे, सादा तौर पे सीखेंगे कि बादशाह कौन है जिसने अपने बेटे की शादी की? खुदा। और उसका बेटा कौन है? कौन है? और शादी, शादी क्या है? ये ज़ियाफ़त है। ये क्या है? ये शादी की ज़ियाफ़त से मुराद है ये अंजीर की खुशखबरी। शादी की ज़ियाफ़त, शादी की ज़ियाफ़त से मुराद है अंजीर या खुशखबरी। क्या है भाई? खुशखबरी। और ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्या है? हाँ जी। और लिबास क्या है? आप देखना, ये लिबास क्या है? उसकी पोशाक जो है वो क्या है? उसकी पोशाक का बाइबल मुकद्दस में से देखें, जरा निकाले मेरे साथ ही यशायाह नबी का सहीफा उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत को जरा निकाले। शाबाश, जो पहले निकाले वो जरूर पढ़ेंगे, रहनुमाई करें। यशायाह नबी का सहीफा उसका 8वां बाब 61 उसकी 10वीं आयत। शाबाश, जो पहले निकाले वो जरूर पढ़ने में रहनुमाई करें क्या लिखा है। यशायाह का 8वां बाब उसकी 10वीं आयत में क्या रकम है, क्या मरकूम है, क्या लिखा हुआ है? जी पढ़े, जो पहले निकाले। शाबाश, पढ़े बेटा। मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूँगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। आगे का लिखा है, उसने रास्तबाजी के खिल्लत से मुझे मुलव्वस किया, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को रास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना क्या करती है?
یعنی کہ یہاں پر جو نجات ہے یہ ہمارے کپڑوں کو ظاہر کرتی ہے. اور کپڑے بھی میں نے پہلے بتایا کہ روایت کے مطابق رواج تھا کہ جو شادی کا لباس نہیں پہنتا تھا, جس کے پاس شادی کا لباس نہیں ہوتا تھا, اسے مہیا کیا جاتا تھا, اور وہ بھی مفت میں, وہ بھی. اور یہ نجات ہمیں کیسے ملی؟ مفت میں. نجات ہمیں کیسے ملی؟ نجات ہمیں کیسے ملی؟ نجات کا لباس, نجات کی پوشاک, نجات کا ڈریس. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا؟ کچھ بھی نہیں. اسیوں کے خط کے دوسرے باب کی 8ویں آیت کے مطابق نجات ہمیں مفت میں ملی ہے. نجات ہمیں, اور شادی کی پوشاک بھی مفت میں تھی جو اس آدمی نے ٹھکرا دی, اور بعد میں اس کا حشر کیا ہوا, اس کا رزلٹ کیا نکلا, اس کا نتیجہ کیا نکلا, اور اسے سزا کیا ملی, اس کی اطاعت کیا ہوئی کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر, ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں یا زنجیریں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دیا جائے. اور باہر اندھیرا جو ہے وہ دوزخ کو, وہ ہیل کو, وہ آگ کی جھیل کو ظاہر کرتا ہے, اس کی تصویر کو پیش کرتا ہے. اور جو مفت نجات کو, مفت پوشاک کو, مفت ڈریس کو, مفت لباس کو ٹھکرا دیتے ہیں, خدا کی نجات کو حاصل نہیں کرتے جو کہ بالکل مفت میں ہے, وہ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جب نجات نہیں حاصل کریں گے جو کہ مفت میں ہے, وہ کہاں جائیں گے؟ ہیل میں, آپ کی جھیل میں, دوزخ میں, وہ وہاں پر جائے گی. اور وہاں پر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مخاشرہ کی کتاب پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اندھیرا ہوگا. وہاں پر اندھیرا, روشنی کی ایک کرن بھی وہاں پر نہیں جائے گی. وہاں خوب اندھیرا ہوگا, باہر اندھیرے میں ڈال دیا جائے. اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ رونا اور دانت پیسنا. اس نجات کو جو ٹھکرا دیتے ہیں, اس نجات کے لباس کو اور جو رد کر دیتے ہیں, پہننا نہیں چاہتے, ان کو بعد میں کہاں پھینکا جائے گا؟ دوزخ میں. کہاں پھینکا جائے گا؟ دوزخ میں یا آگ کی جھیل میں. اور رومیو 13ویں باب کو ذرا نکالیں. رومیو کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 13واں باب, اس کی 13 اور 14 آیت کیا بیان کرتی ہے, یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. جس طرح حوالہ جات کو لکھتے جائیں, جو آپ نے ساتھ کاپی پین سے لے کر آتے ہیں وہ ضرور لکھیں. رومیو 13ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کیا لکھا ہے؟ جی. جیسا دل کو دستور ہے, جیسا دل کو دستور ہے, شائستگی سے شائستگی سے چلے, نہ کہ ناچ رنگ, نہ کہ ناچ رنگ اور نشے بازی سے, اور نشہ بازی سے, نہ نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے, اور نہ جھگڑے اور نہ جھگڑے اور حسد اور حسد سے, بلکہ خداوند یسوع مسیح کو بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو. بلکہ خداوند یسوع مسیح کو اس آدمی کے لیے بھی پوشاک مہیا کی تاکہ وہ پہنے اور دوزخ سے بچ جائے, کار کوٹری سے بچ جائے, بیڑیوں زنجیروں سے جکڑنے سے بچ جائے. لیکن اس نے پوشاک کو قبول نہ کیا. لیکن یہاں پر پوشاک یسوع مسیح کو بھی ظاہر کرتی ہے. یسایہ کی جو ہم نے صحیفہ میں 11 باب کی 10ویں آیت کو پڑھا, وہاں پر نجات جو ہے وہ پوشاک کو ظاہر کرتی ہے. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح پوشاک کو ظاہر کرتا ہے. وہاں نجات کی پوشاک ہے اور یہاں یسوع مسیح کو پہننے کا پوشاک ہے. یہاں پر یعنی کہ اس کی نجات کو پہن لینا, یسوع مسیح کو پہن لینا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ ہاں جی کیا لکھا ہے بیٹا پڑھے؟ اور جسم کی خواہشوں کے لیے, اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں ٹھیک ہے بیٹا. اور جسم کی یہاں پر جو ہے لباس, یسایہ کی کتاب کے مطابق لباس نجات کو ظاہر کرتا ہے. اور رومیو کے خط کے مطابق جو لباس ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یسوع مسیح کو. نجات کو پہن لینا, یسوع مسیح کو پہن لینا, یہ ہے شادی کی پوشاک پہن لینا اور ضیافت میں شریک ہو جانا. اور ضیافت میں شریک ہو کر یسوع مسیح کی میز پر کھانا اور پینا. اس لیے خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں تم اسی طرح میرے خون اور گوشت میں شریک ہوتے رہنا. اور پولس رسول کہتا ہے کہ جب تک کوئی نجات کو حاصل نہیں کرتا, یسوع مسیح کو نہیں پہنتا, اتنی دیر تک وہ نامناسب طور پہ اس کے خون اور گوشت میں شریک ہوتا ہے. پہلے یسوع مسیح کو پہننا, نجات کو حاصل کرنا, اور پھر اس کے میز پر, اس کے ٹیبل پر, اس کی شراکت پر جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہونا, یہ بڑی بات ہے. اور آگے غلطیوں کا خط, اس کا 30واں باب کی 26ویں 27ویں اور 28ویں آیت کو ذرا نکالیں. آپ بہنوں میں سے پڑھیں گے, شاباش. غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط, یہ فوراً دوسرے کرنتھیوں کے بعد آتا ہے. دوسرے کرنتھیوں کے خط کے فوراً بعد غلطیوں کا خط آ جاتا ہے.
उसका 3रा बाब और उसकी 26, 27वीं और 28वीं आयत क्या बयान करती है। आप बयानों में से कोई पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। शाबाश, पढ़े 26वीं आयत से। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। मसीह को यहाँ पर जो है ये बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को पहन लेना जो है वो लिबास को जाहिर करता है। यहाँ पर गलतियों 3 बाब की 26वीं, 27वीं और 28वीं आयत के मुताबिक लिबास क्या है? बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को पहन लेना, यीशु मसीह को। और उसके बाद फिर क्या कंडीशन होती है? हाँ बेटा आगे पढ़े क्या लिखा है? शाबाश, आगे क्या लिखा है? उसके बाद ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, निजात को हासिल कर लिया, यीशु मसीह को पहन लिया, और उसके बाद पानी का बपतिस्मा ले लिया। इसमें भी मसीह को पहनने के मुतरादिफ है, यानी कि मसीह को पहन लेना है, लिबास को, पोशाक को, ड्रेस को ले लेना है, और वो भी पैसों से हासिल करनी है निजात। यीशु को पैसों से हासिल करना है, बपतिस्मे को पैसों से हासिल करना है। इमाम की किताब पढ़े तो वहां पर रूह कुदस के बपतिस्मे के बारे में जिक्र है। जब रूह कुदस के बपतिस्मे की ताकत से, पावर से, कुव्वत से जो है वो यीशु के शागिर्द और रसूल जो है वो तरह-तरह के मोज़ात करते थे, शिफाएं देते थे, शिफाएं बांटते थे। तो वहां पर मेरा एक अहम नाम था, उसका नाम बड़ा क्या था? शमौन जादूगर। शमौन जादूगर, आई नो, शमौन जादूगर उसका नाम था। और फिर वो क्या कहता है? वो रसूलों के पास आता है और कहता है कि ये पैसे लो, ये पैसे ले लो और मुझे भी रूह कुदस दो, ताकि जो काम तुम करते हो वो मैं भी करूं। और पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा कि ये तेरे पैसे, तेरी दौलत तेरे साथ गारत हो। क्या हो? गारत हो। तू खुदा की कुव्वत को, खुदा की कुदरत को, खुदा के मोज़ात को, खुदा की शिफा को पैसों से खरीदना चाहता है। देख, ये तेरी दौलत, तेरा रुपया पैसा तेरे साथ गारत हो। और आगे पतरस कहता है अपने इस गुनाह से तौबा कर, अपने इस गुनाह से यीशु मसीह को, उसकी निजात को, बपतिस्मे को, रूह कुदस की किसी कुव्वत, नेमत, ताकत को हम कभी भी पैसों से हासिल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल क्या है? फरीद है, ये बिल्कुल मुफ्त में है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसके लिए सिर्फ हमें हासिल करने की जरूरत है। अगर क्योंकि निजात गिफ्ट है। निजात क्या है? निजात खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। जैसे उस आदमी के लिए जो पोशाक थी वो तोहफे के तौर पे थी, वो मुफ्त में थी, लेकिन उसने उसे हासिल करने से इनकार कर दिया। वो अपनी रास्तबाजी पर बड़ा तुलावा था। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो निजात के बगैर अपने आप पर तुले होते हैं। कल बात दूसरी कलीसिया के अंदर मैं गया और मुझे वो कहने लगे कि ऐसा डर मुंडा है, इतने दुआ करो, इतने दुआ करो, या दिल घबराता रहता है, दिल रात में उठता रहता है, नींद नहीं पैदी है। जब मुंडे की कंडीशन देखी, बड़े बड़े वाल, मेकअप किया, अद्धा कुछ लग रहा है, कुछ लगता है, समझ नहीं लगती है कि मैं कह रहा बेटा दुआ करना है, बस में दुआ भी करना, रोज़ी भी रखना। शाबाश, तेरे स्टाइल ही किधर को बोलने हो सकता। ठीक है जी, मैं समझा, मैं कहा बेटा तौबा की है तो बेटा फिर निजात तो बगैर तेरी दुआवां कबूल नहीं। अपनी रास्तबाजी ना चमकाए। जब तक हम निजात को हासिल नहीं करते मुफ्त में, उतनी देर तक हमारी कोई दुआएं, कोई रोजा काबिल कबूल नहीं होता। जोर लगा कर देख ले। मैंने कहा बेटा पहले अपने इन हरकतों से, इस स्टाइलों से तौबा कर। ये स्टाइल तेरे नहीं, ये तीसरी दुनिया के हैं। पहले इनसे तौबा कर कि आज के बाद मैं ना बंदा ना बीवी, मैं खुदा तेरा बंदा हूं, तेरा बेटा हूं। पहले इन्हें गला इकरार कर, मैं जो भी कर रहा हूं वो दुरुस्त नहीं करता। इस निजात जड़ी मुफ्त चले इन हासिल कर। और बंदा वो अपनी मर्जी का लिबास पा के आ गया सी, अपनी मर्जी के कपड़े पा के आ गया सी, और बड़ा करता वो जब फिर तो रख मैंने भी रोटी मिलेगी। लेकिन रोटी मिलने से पहले टेबल पर
शिरकत करने से पहले बादशाह आया और आकर उसने उसे पहचान लिया और कहा कि मियाँ तू शादी के लिबास के बगैर क्यों यहाँ आया है और तेरी सजा क्या है? तेरे हाथ पाँव को बांध कर कहाँ फेंक दिया जाएगा? शादी के फंक्शन से निकाल कर दोज़ख में डाल दिया था। वजह क्या थी? लिबास। वजह क्या थी? लिबास से मुराद क्या है? अपनी रास्तबाजी, अपनी रास्तबाजी से मुराद है अपनी मर्जी से मुराद ये है कि निजात हासिल किए बगैर हम खुदा से मांगते रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं, खुदा कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं, मेरी कदी थोड़े नाल वाकफियत है ही नहीं। बड़े लोग दुआवां भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, जेडे वो साडे रस्मी रोजे होंदे ने 40-40, वो भी बड़े फखर नजर में पैसा एक रोजा भी नहीं छड्डिया, पैसे रखो। जबकि आपने शादी वाली पोशाक ही नहीं पहनी, यीशु मसीह को नहीं पहना, निजात को हासिल नहीं किया, तो ये रोजे रखो। वो फिर रोजा नहीं, वो भूखा मरने का नहीं। रोजा रखने से पहले, दुआ करने से पहले हमने शादी वाला लिबास जरूर पहनना है। अपने शादी वाले लिबास को जरूर याद रखें, वरना सजा क्या होगी? इसे शादी वाले फंक्शन से निकाल कर बाहर अंधेरे में फेंक दो, जहाँ रोना और भांग पीसना है। जहाँ अगर हम निजात के बगैर हैं, अगर हम यीशु के बगैर हैं, अगर हम रूह कुदस के बगैर हैं और रूह कुदस के बपतिस्मे के बगैर हैं, तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। यीशु ने इसलिए कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर तुम मुझसे जुदा कर। इसका मतलब है कि हमने यीशु को कबूल ही नहीं किया, हम यीशु को जानते ही नहीं, तो फिर हम उससे जुदा हैं और हम कुछ भी कर। जिन्हें मर्जी दुआ मांग लो, जिन्हें मर्जी रोजे रख लो, जाओ। दादा कलाम के अंदर मैंने के अंदर पहले शादी की पोशाक पहनो, पहले शादी की पोशाक पहनो, पहले निजात को हासिल करो, यीशु मसीह को पहनो और बपतिस्मा जो है वो लेकर मसीह में शामिल हो जाओ, मसीह को पहन लो, तो फिर आपकी दुआएं और रोजे भी काबिल कबूल होंगे। आपके रोजे और दुआएं भी काबिल कबूल। मुकाशवा किताब उसको 19वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत को जरा निकालें। मुकाशवा योना अरब का मुकाशवा उसकी 19वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत ये क्या बयान करती है? अगर हम निजात को हासिल कर लेते हैं, अगर हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, मसीह को पहन लेते हैं, हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, तो फिर क्या होता है? योना रसूल का इंजीली बयान उसका पहला बाब उसकी 10वीं 11वीं 12वीं और 13वीं 14वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि वो अपने घर आया और अपने से कबूल ना किया। पहले बादशाह ने किनको दावत दी? हाँ जी, बादशाह ने पहले किनको दावत दी? अपनों को। असली में जो कोई फंक्शन करना है ना, जैसे बेटे बेटी की शादी, ब्याह, अकीका, मंगनी, सालगिरह वगैरह, तो साहब तो पहले लिस्ट कितना दी बनाने हैं? अंसर साहब कितना दी बनाई है लिस्ट? भैया चाचियाँ, ताया, मामियाँ, पुप्पियाँ दी लिस्ट बनाओ। और पहले इन अपनों को बच गया तो फिर दूसरे को दे लेंगे। अपनों की पहले हम किनको इन्वाइट करते हैं? पहले हम किनको मदऊ करते हैं? अगर अपने राजी ना हो, अपने ना आए, तो फिर उस बादशाह की तरह मेरा खाना जाया ना जाए। खाना जाया फिर इसी तरह लाभ में इधर बुला लो और सामने बुला लो, इधर बुला लो, उधर बुला लो, ताकि साड़ी रोटी जाया ना जाए। और वो अपनों में आया और अपनों से कबूल ना किया। और फिर उसके बाद यूहन्ना रसूल ने भी बड़ी कौम बना दी थी और फिर यूहन्ना रसूल की भी किसी ने बात ना मानी और रसूलों को भेजा गया। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को भेजा और शिगिर्दों की भी बात अपनों ने ना मानी। और फिर ईमान की किताब को जब आप रूटीन वाइज पढ़े तो वहाँ फिर गैर कौमों के पास खुशखबरी को लाया गया, गैर कौमों के पास खुशखबरी को पहुंचाया गया। रसूल यीशु मसीह के शागिर्द अपनों को छोड़कर फिर गैर कौमों की तरफ गए और उन्होंने जाकर गैर कौमों को अंजील सुनाई, खुशखबरी सुनाई, निजात का पैगाम दिया और उन्हें हंसकर कबूल कर लिया। हालेलुया। ये इस तमसील की जो है वो इस तमसील का जो है वो रिजल्ट है। ये तमसील की जो है, ये कहानी की जो है, ये वजह है कि यीशु मसीह बेटा, खुदा का बेटा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और फिर जो उस पर ईमान लाता है लाख नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। कौन जिंदगी पाता है? जो निजात को पा लेता है। कौन जिंदगी पाता है? हमेशा की जो यीशु मसीह को पहन लेता है। कौन हमेशा की जिंदगी हासिल करता है? जो बपतिस्मा के जरिए से मसीह को पहन लेता है और वो हमेशा की जिंदगी को हासिल करता है। ये भी मैं आपको जो है ये इसका भी हल निकाल कर देता हूँ। इसका भी हल, पहले कलाम को सुनना, अंजील को सुनना, अंजील को मानना,
यसु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजात कबूल करना, निजात को हासिल करना, मसीह को पहन लेना, यसु मसीह को पहन लेना, और उसके बाद फिर पानी का बपतिस्मा। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि पानी के बपतिस्मे से निजात है। पानी का बपतिस्मा निजात पानी के बाद होता है। सुनिएगा, बहुत से हमारे खातम हज़रात जो है वो उल्टी तालीम को देते हैं, लेकिन पहला पानी का बपतिस्मा तो फिर निजात है। याद रखिए, पहले कलाम के सबब से निजात हासिल करते हैं और उसके बाद जो है वो हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। ये बिब्लिकल तालीम है, ये बिब्लिकल नॉलेज है। आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब मैं और आप पैदा हुए तो पैदा होने के बाद हम गुस्ल हमें दिया जाएगा, पहले दिया जाता है? हाँ जी, समझ रहे हैं? हम कलाम के सबब से, अंजील को कबूल करने के सबब से, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजात कबूल करने से नए सिरे से पैदा होते हैं, नई पैदाइश को हासिल करते हैं, और नई पैदाइश को हासिल करने के बाद हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। याद रखिएगा, पहले निजात, उसके बाद पहले नए सिरे से पैदा होना, उसके बाद फिर गुस्ल लेना। पहले पैदाइश, उसके बाद गुस्ल, और गुस्ल पैदा होने के बाद कितने दिनों के बाद दिया जाता है? हाँ जी, जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो फिर उसको गुस्ल कितने दिनों के बाद दिया जाता है? हाँ जी, ये बिब्लिकल बात है, चक्कन शमान वाली गल नहीं है। कितने दिनों बाद जड़ा वो सी बच्चे को गुस्ल देने हैं, दसो? हाँ जी, कि देंगे नहीं? जिन्हें बच्चों को बरकत ना दवाते हैं, बच्चा वड्डा सारा हो जाता है, शरारतां करना शुरू कर देता है, सताना शुरू कर देता है, अलामे होने देना शुरू कर देता है, फिर ना भाई साहब में बरकत दो, हुण बरकत होते की कमी। ऐसा ही है ना? यानी कि हम जब पैदा बच्चा होता है तो कितने दिनों के बाद उसे गुस्ल दिया जाता है? हाँ जी, किसी को नहीं पता है। चको ना कलाम की गल मैं अपने कोलों नहीं करता था, कड़ी कितने दिनों के बाद? 4 दिन के बाद। ऐसे है ना? इसी तरह पहले हम कलाम के सबब से नए सिरे से पैदा होते हैं, और उसके बाद जो है वो गुस्ल होता है बपतिस्मे का। इसी तरह फिर हम यीशु मसीह को पहनते हैं, उसकी निजात को हासिल करते हैं, शादी वाली पोशाक में आ जाते हैं, और फिर हम शादी की ज़ियाफत में शरीक होते हैं। मुकाशवा आपका मुकाशवा उसका 19वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ेगा। क्या लिखा है? शाबाश, क्या लिखा है? आप खुशी करें और नहाय शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि भला की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। आओ हम खुशी करें, आओ हम क्यों खुशी करें? क्यों? क्योंकि भला की शादी आ पहुंची। हमें इन्विटेशन कार्ड मिल चुका है, खुदा का कलाम हमारे सामने है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दावतनामा है। सुनिएगा, अंजील के अलावा हमारे पास और कोई दावतनामा नहीं है। आओ हम खुशी करें, आओ हम किस तरह से खुशी करें? पहले इसको सुने। लिखे के पास ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। इसको सुने, इसको कबूल करें और निजात को हासिल करें। निजात का जो है वो लिबास पहने, निजात की पोशाक पहने, निजात का ड्रेस पहने, यीशु मसीह को पहने, मसीह को पहने, और फिर उसके बाद आओ हम खुशी करें, आओ हम खुशी करें, क्योंकि भरा की शादी आप पहुंचे। उसकी दुल्हन ने भी अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार। आगे क्या लिखा है? जी पढ़े, क्या लिखा? आगे क्या लिखा है? और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। यानी कि जब हम निजात हासिल करने के बाद खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, हम वो काम करते हैं जो खुदा कहता है, हम वो काम करते हैं जो अंजील कहती है, हम वो काम करते हैं जो रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई करता है, तो ये रास्तबाजी के काम है। ये यानी कि तौबा करने के बाद, निजात हासिल करने के बाद जो है, जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो ये हमारे लिबास को ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे यानी कि मुकद्दस महीन जो है वो लिबास, वो कपड़े को, पोशाक रास्तबाजों के काम को ज़ाहिर करते हैं। और निजात हासिल कर लेना, मसीह को पहन लेना, ये बड़ा जरूरी है। और उसके बाद फिर क्या जरूरी है?
اس کے بعد پھر کیا ضروری ہے؟ اس کے بعد کیا ضروری ہے کہ نجات کے مطابق چلنا، خدا کے کلام کے مطابق اپنی مسیح زندگی کو پاکیزگی کے طور پہ بسر کرنا۔ یہ لباس کو ظاہر کرتا ہے، ہمارے اچھے لباس کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر لوگ دیکھیں تو کہیں کہ واقعہ یہ تیرے شاگرد ہیں، یہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، یہ خدا کے بیٹے اور خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ ہمارے کام ہمارے لباس کو ظاہر کریں گے۔ ہمارے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ ہمارا لباس، ہمارا ڈریس، ہمارے کپڑے ہماری راست بازی کے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری راست بازی کو، میں نے پہلے کہا کہ ہمارا یہ جو ڈریس، جسمانی ڈریس ہے، دنیاوی ڈریس ہے، ہمارے کپڑے ہیں، یہ ہماری دنیاوی طور پہ پرسنالٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ اگر میرے کو کوئی پیسہ بھی نہ ہوگا، میرا ڈریس ٹھیک ہوگا تو ہر بندہ عزت کرے گا، ایسا ہی ہے نا؟ ہر بندہ کیا کرے گا؟ عزت۔ اگر میرے کو لکھن پہ بھی ہوں گے، میرے کپڑے نہیں ٹھیک ہوں گے تو کوئی بندہ کہے گا، ایسا ہی ہے نا؟ ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، اور اس طرح سے نجات جو ہے ظاہر کرتی ہے۔ اور نجات کے بعد نجات والے کام، وہ بھی نجات حاصل کرنے کے بعد وہ بھی خدا کے کلام کے عین مطابق جیسے خدا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور ہمارے کام ہمارے لباس کو ظاہر کرتے ہیں، ہماری پوشاک کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں ریاکار بن کر نہیں، کلیسیا میں رہنا اور کلیسیا کے ہو کر رہنا یہ فرق ہے۔ کلیسیا میں ہر کوئی رہتا ہے، لیکن کلیسیا کا کوئی رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کلیسیا میں ہم سبھی بیٹھے ہیں، لیکن کلیسیا کا کوئی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ تھوڑے، بلائے ہوئے بہت ہے لیکن برگزیدہ اور وفادار اس سے بھی کم۔ اس سے بھی ہم بلائے گئے ہیں، ہم بلائے گئے ہیں، اور ہمیں کیا رہنا ہے؟ ہمیں برگزیدہ رہنا ہے، اور برگزیدہ ہونے کے بعد ہمیں کیا رہنا ہے؟ وفادار۔ مقاشہ کتاب اس کا 2 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا آئیے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے یسوع کو پہنے، اس کی مفت نجات کو حاصل کرے اور خدا کے پسند بنے، تاکہ جب یسوع آئے تو پھر ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، اور ہمارے کام، ہمارے لباس کو، ہمارے پوشاک کو ظاہر کریں گے، وہ بھی نجات حاصل کرنے کے بعد۔ خدا ہمیں اسی طرح اپنی وفاداری میں رہنے کا گھر فضل عطا کرے۔ خدا اس کلام کی برکت ہم سب کو